In my mind, when I was praying about today, there was something that God was putting in my heart was to talk about the blood of Jesus. जब मैं आज समाज के लिए परमेश्वर की उसमें प्रार्थना कर रहा तो जो मैंने देखा वो है कि परमेश्वर का रक्त, यीशु का रक्त। Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. It washes white as snow. यीशु का लहू जो हर एक पापों को धोता है, जो बर्फ के समान है, सफेद बर्फ के समान है। I want to read a verse from Hebrews chapter 13. इब्रानी पत्री 13वां अध्याय हम देखेंगे। Chapter 13, verse 20-21. इब्रानियों 13 20 और 21 हम देखेंगे। Now may the God of peace, who brought up our Lord Jesus from the dead, the great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant, make you complete in every good work to do His will, working in you what is well pleasing in His sight through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. इब्रानी पत्री 13 इस तरह है। अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के नूर से भरे वो में से छिका कर ले आया। तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको पापा है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उपलब्ध करे। उसी की महिमा युग होती रहे। There's something here that we just want to draw attention to, and this is the blood of the eternal covenant. यहाँ पे जो बात है जिस पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ वो है जो रक्त युग वाला रक्त। So in the Hindi it says vacha, right? In the English it's covenant, and in Gujarati it's kara. Okay? Jesus, when you believe in Him, you and Him have made an eternal covenant. जब आप यीशु में विश्वास करते हो तो आप और यीशु के बीच में एक युग वाला वाचा बनता है। एक करार आपके बीच में यीशु से एना लोग वाला ये मेरा covenant सनातन। Remember? Here Jesus is saying, I will never leave you, I will never forsake you. यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे कभी त्यागूंगा नहीं। He says, and my blood is the guarantee, my life is the guarantee. I love you so much. और ये यूं कहता है कि मेरा जो रक्त है वो उस बात की गारंटी देता है कि मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ। If you have faith in Jesus, if you take one step of faith in Jesus, Jesus will start working in your life. अगर आप यीशु में विश्वास करते हो और आप उसकी तरफ एक स्टेप लेते हो तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना शुरू करेगा। थोड़ा सा विश्वास, a little faith, प्रभु सब कुछ करेगा. and He will do everything for you. Here it says, God make you complete in every good work to do His work. Who makes you complete? God make you complete. वचन यूं कहते हैं कि परमेश्वर आपको पूरा करता है, कंप्लीट करता है। उसके लिए क्यों कौन करता है? परमेश्वर खुद आपको पूरा करता है उसमें। काम कौन करता है? कौन करेगा? कौन करेगा काम? Who will do work? आपको आपके जीवन में Who will do work in your life? प्रभु. Jesus. He doesn't leave it to you. He doesn't leave it to you. वो आप पे छोड़ नहीं देता वो काम को। He says, I am going to hold your hand. और वो कहते हैं कि मैं तेरे हाथ को पकड़ के रखूंगा।
just what I'm saying. The Bible says in Psalm 73, Psalm 73 उसका 23 और 24 में 73:23, it says He holds us by our right hand. Psalm 73:23 में कहता है कि वो हमें उसके खुद के हाथों से पकड़ करता है. You can see it there, right? Right now, you might not know, you might not feel, but Jesus is holding you by your hand. He is holding you, right? ये समय शायद आप ये नहीं महसूस कर पा रहे हो कि उसने आपका हाथ पकड़ के रखा हुआ है. He loves you and He said, I'll never let you go. I'll never let you go. तो आपसे प्रेम करता हो, कहते हैं कि मैं तुझे कभी भी नहीं त्यागूंगा, मैं तुझे कभी भी नहीं त्यागूंगा. Through the storms, तूफानों में, through the rain, बारिशों में, He is with you. वो आपके संग है. On the mountain top, अगर आप ऊंची जगह पे हो, चोटी पे हो, or in the valleys, अगर आप तराई में हो, He is there. वो आपके संग वहाँ पे भी है. He is faithful. वो विश्वासु है. Recently, I was visiting someone in hospital. अभी कुछ समय पहले मैंने जो हॉस्पिटल वहाँ पे कुछ जन उनकी मैंने मुलाकात की. And as I was sitting, I saw that they had a patch of blood dripping, into his eyes. Blood. और मैंने कुछ देखा कि कुछ रक्त है जो व्यक्ति उनके हाथों पे गिर रहा था. So I said, oh, to the nurse, what's happening here? और मैंने जो नर्स थे उनको मैंने पूछा यहाँ पे क्या हुआ है. He says, we're giving him blood transfusion. और वो उन्होंने कहा, नर्स ने कहा कि हम उनको जो रक्त है वो चढ़ा रहे हैं, We're changing the blood. जो उनके शरीर में जो रक्त है उसे हम बदल रहे हैं दूसरे नए रक्त से. So I said, why? What happened? तो मैंने उनको पूछा क्या हुआ. So because the iron is low in the blood, iron is low. उन्होंने कहा कि आयन की उणप की वजह से And he has infection in his body. जो आयन है उनकी उणप की वजह से वो कम है, उस वजह से वो उनको इन्फेक्शन हो गया था उनके शरीर में. And we need the iron to help fight the infection. So we are giving him new blood that's got enough iron. तो हम वो रक्त बदलने की प्रक्रिया से उन्हें नया आयन और भी ज्यादा आयन के उनके शरीर में, ताकि उनका शरीर वो इन्फेक्शन के सामने लड़ सके. If some of you have done biology, you will know that iron, its job is to hold on to the oxygen molecule and then deliver the oxygen to every part of the body. अगर आपने किसी में से जीव विज्ञान पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि जो आयन है वो जो ऑक्सीजन है उसको पकड़ के रखता है और उसके द्वारा हमारे शरीर में ऑक्सीजन की प्रक्रिया होती है. Before anyone knew this, the Bible, long ago, 4,000 years ago, it says the life is in the blood. ये चीज कोई जाने से पहले भी जो कोई शास्त्र है 4,000 साल पहले कहता है कि जो जीवन है वो रक्त में है. So without the oxygen, without the life in the blood, we can't have life. उसका मतलब ये है कि जो ऑक्सीजन अगर वो रक्त में नहीं है और हमारे में नहीं है तो हमारे में जीवन नहीं पाया जाएगा. And this person's blood was not good, it was bad, it was going bad, right? तो So when I was in the hospital, तो जो व्यक्ति जो हॉस्पिटल में था उनकी जो ब्लड चेंज जो बदलने की प्रक्रिया थी वो अच्छी नहीं थी. the Bible says in Romans chapter 3:23, the Bible says that all have sinned and fallen short of the glory of God. All have sinned, right? The Bible says. रोमी की पत्री 3:23 कहता है कि सब ने पाप किया और उसकी महिमा से वंचित है. So how do we know that we have problem? How do you know we have problem? So with Eric is here, I'm going to ask Deep, come in. Deep, we're going to do some small matter, okay? हमें कैसे पता चल सकता है कि हम कोई परेशानी में है. We are very good friends. Eric, Satish, and Deep, right? So Deep is here. पास्टर दीप और एरिक भाई काफी अच्छे मित्र हैं. He is somebody here else. I'm talking to Deep. All of fellows and all of fellows. Eric, Bokhara, face sample on me. He know that person is your bag and don't listen to him. Okay. Deep is going to go to him. अब वो दीप भाई मेरे पास आएंगे He is going to say to Eric. और वो कुछ मेरे से कहेंगे. Satish. And the Deep will say Same thing about me, right? the Deep will say the same thing to me about Satish brother that he is not there.
जिंदगी છે ને એ બરાબર ના બિલકુલ નહીં. Okay, thank you. So let's read Romans chapter 2 verse 1. रोमियो पत्री 2 उसका पहला कलम पढ़ेंगे। Here it says, वो ये कहता है book of Romans, रोमियो 2:1 it says, therefore you are inexcusable, O man, whoever you are who judge. For in whatever you judge another, you condemn yourself, for you who judge practice the same things. Okay? तो रोमियो 2:1 ये कहता है, अतः हे दोष लगाने वाले तू कोई क्यों न हो, तू निरंतर है, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। So we saw, right? You saw, I'm saying something to someone, but the same thing I'm doing. Right? और जैसे हमने देखा कि जैसे मैंने कुछ बात किसी को कही और कोई व्यक्ति कुछ बात किसी और को कहता है, I have the right and wrong in my heart. Now this is right, this is wrong. मैं मेरे हृदय में जानता हूँ क्या अच्छी बात है क्या बुरी चीज है। And I say, you know that Sanjay, look at him, he's like this, look at this, he's like this. You know? I'm saying, right? और मैं इससे कुछ कहता हूँ ये नहीं वो कुछ इस तरह से कुछ कहता हूँ। But behind, when no one's looking, I am doing the same thing. और कोई मुझे पीछे से नहीं देख रहा उस समय पे मैं वही चीज कर रहा हूँ। मतलब, we all know what is right and wrong. उसका मतलब ये है कि हम भली भांति जानते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है। We know how to judge, हमें भी पता है कि किसी को कैसे जज करना है, but we are also doing the same thing. लेकिन हम वही चीज हम खुद भी करते हैं। You know that Eric, you know what he's like? क्या आप जानते हो एरिक क्या वो क्या करता है? You know what Satish what he's like? क्या आप जानते हो सतीश भाई वो क्या करते हैं? What does this tell us? ये एक बात क्या हमें बताती है? All of us know what to do, what is right and wrong, हम सभी लोग जानते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है क्या करना है, but none of us can do right. लेकिन हम में से कोई भी वो अच्छी बात नहीं करता। All of us have a problem. हम सभी को कोई एक परेशानी है। All of us, our blood is bad. हम सभी का जो रक्त है वो अच्छा नहीं है। We need a new blood. हमें एक नए रक्त की जरूरत है। Our blood is bad. हमारा जो रक्त है वो गंदा है बुरा है। Anyone can say, I'm perfect, I've never done anything wrong? Anyone? क्या हम में से कोई भी ये कह सकता है कि मैंने कभी भी कोई भी ऐसा कुछ काम नहीं किया है, मैं सही हूँ, मैं पूरा हूँ? If anyone says they are perfect, they are deceived or proud. अगर कोई ये कहता है कि मैं पूरा हूँ, मैंने ऐसा कुछ काम नहीं किया, तो वो अपने आप में घमंड रखता है। What is the solution? तो उसका सॉल्यूशन क्या है? We have this bad blood, which is what causes the world to go in sin and corruption. तो हमारे शरीर में जो पूरा रक्त है वो क्या करता है? ये जो जगत की जो बुरी बातें हैं वो हमसे करवाता है। We need new blood. हमें नए रक्त की जरूरत है। Who is going to give us new blood? हमें कौन नया रक्त देगा? My blood is bad. मेरा रक्त बुरा है। Eric's blood is bad. एक भाई का भी रक्त बुरा है। Nim's blood is bad. एक भाई का भी जो रक्त वो भी बुरा है। Who is going to give me blood that's not good? तो हमें कौन होगा जो हमें अच्छा रक्त देगा? I was born in Malawi, Africa. मैं जो मेरा जन्म है वो मलाया अफ्रीका में हुआ था। And in Africa we have mosquitoes. That's just like some places. Mosquitoes. Here, और वहाँ पे जो अफ्रीका है वहाँ पे ऐसे कुछ मच्छर जो ऐसे इस तरह से आवाज करते हैं और उड़ते हैं। and they carry malaria. और वो जो मलेरिया नाम की जो बीमारी है वो अपने आप में लेके घूमते हैं। So when we were young, जो हम जब छोटे थे I got malaria. और मुझे मलेरिया हो गया। So some years ago I went to give blood. और कुछ साल पहले ऐसा था कि जब मुझे रक्त की जरूरत पड़ी So they say, where are you from? Africa. Blood, do you have this? Yeah. Tested my blood. और उन्होंने मेरा ब्लड टेस्ट किया और मुझे कुछ सवाल पूछे कि आप कहाँ से हो, क्या हुआ क्या नहीं, ये सब मुझे पूछा। Sorry, we can't use your blood. और उन्होंने कहा कि मैं आपका जो रक्त है हम यूज नहीं कर सकते, उसको उपयोग नहीं ले सकते It's infected. क्योंकि उसमें इन्फेक्शन हो गया है, Malaria. उसमें मलेरिया हो गया है Can't use it. और हम वो उपयोग के लिए योग्य नहीं है। Everyone who is born हमें से जो भी जो जन्म लिया हुआ है
when someone upsets you, how you react? अगर आप પેલાને આમ કર્યું, આમ કરું, અન્યાય કહેવાય, આમ કહેવાય, ભાઈ પૈસા લઈ લીધા, બરાબર. So, अगर कोई हमें कुछ कहते हैं तो we will start to say, oh, he said, the person did that and he borrowed money and this and that. We start to say those things. We are dying. हम मर रहे हैं. We need new blood. हमें एक नए रक्त की जरूरत है. God before time. परमेश्वर के समय के पहले, before we were born, हम हमारे जन्म के पहले, He so loved us. उसने हमसे इतना प्रेम किया. He loves us so much. वो हमसे इतना प्यार करता है. He said, I will come to earth. और उन्होंने कहा कि मैं पृथ्वी पे आऊंगा. I will give my blood. और मैं मेरा जो रक्त है वो मैं दूंगा. My blood will heal, deliver, set free, wash and clean you forever. और मेरा जो रक्त है वो आपको धोएगा, आपको छुटकारा देगा, आपको चंगाई देगा, वो सब कुछ करेगा. If you believe this message, अगर आप ये संदेश पर विश्वास करते हो, today आज you will receive new blood. आप ईश्वर में नए रक्त को पाओगे. Today आज there will be blood transfusion. आपके जीवन, आपके शरीर में एक नया रक्त आएगा. You will become new. You will become new. और आप उसके द्वारा नई प्रकृति हो जाओगे. Jesus said यीशु ने कहा in John chapter 8 verse 24. यूहन्ना की किताब 8 और 24 में कहा, Unless you believe in me, you will die in your sins. अगर आप विश्वास नहीं करते तो आप आपके पाप में ही मृत्यु पाओगे. Unless you believe in me, अगर आप विश्वास नहीं करते हो, you will die. आप मृत्यु पाओगे. Unless you believe in Jesus, that blood is going to kill us. अगर आप यीशु पे विश्वास नहीं करते हो तो हमारे शरीर में जो बुरा और गंदा रक्त है वो हमें मृत्यु में ले जाएगा. Verse 23, Jesus says, verse 23, John chapter 8, He यूहन्ना की says, किताब 8 और 23 से कहता है, I am not from here. मैं इस जगह से नहीं, मैं इस जगह से नहीं हूँ. I am not like the rest of you. मैं आप में से ही नहीं हूँ. I am from above. मैं ऊपर से हूँ. You are from below. आप इस जगह नीचे से हो, मैं ऊपर से हूँ. I am not of this world. मैं इस जगत में से नहीं हूँ. Jesus यीशु was King of heaven. He was God most high. वो स्वर्ग का राजा, उच्च राजा. He took our form. वो हमारे मनुष्य का स्वरूप लिया He came like us. और वो हमारे जैसा मनुष्य बना. And he said, Satish, और उन्होंने कहा कि सतीश, of course, I use this paper to write my notes. This paper, my notes. Very dirty. मैं ये जो कागज जैसा है किस प्रकार से यूज करता हूँ मेरे नाक को पूछने के लिए, जो बहुत ही गंदा है. बहुत ही गंदा है. This is how all our things have been done before God. और ये जो चीज बताता है कि हमने कैसे कैसे बुरी चीजें परमेश्वर के आगे की हुई है. That's how dirty. ये इस तरह की चीजें हमने की हुई है जो काफी बुरी है. Jesus said, Satish, और यीशु कहता है, give me all the dirty things you've done. और यीशु कहता है कि सतीश, आपकी जो बुरी चीजें जो आपने की हुई हर चीजें मुझे दे दीजिए. I will take them on. और मैं अपने ऊपर ले लूंगा. I will take all the things you've done. आपने जो भी चीजें की वो हर चीजें मैं अपने आप पे ले लूंगा. And I will destroy them. और मैं उसको नष्ट कर दूंगा. I will pay the price for मैं them. उसकी कीमत है वो मैं उसकी कीमत में दूंगा. The payment that I deserve, the judgment I deserve. The judgment I deserve. जो न्याय और जो कीमत थी जो मुझे देनी चाहिए थी, Jesus took it. वो यीशु ने दिया. If you believe अगर विश्वास करते हो, today, आज you will be set free. आप छुटकारा पाओगे. You will see a new person come alive. आप आपके जीवन में आप खुद को एक नया इंसान देखोगे. In the book of Ephesians, chapter 1, verse 7, इफिसियों के पत्र 1:7 ये कहता है, again we read, in Him, in Jesus, we have redemption, the forgiveness of our sins, according to the riches of His grace. In Him, in Jesus, यीशु में we have छुटकारा. we have redemption. यीशु के लहू की वजह से हमको मिली है छुटकारा. Just from Jesus love we got the redemption. Because of sin, क्योंकि पाप many things control us.
जो पाप है वो बहुत चीजों के द्वारा हम पे हमें कंट्रोल करता है। Many spirits control us. बहुत सारे जो आत्मा है वो जो स्पिरिट से हमें कंट्रोल करती है। Because of sin, क्योंकि पाप की वजह से the door of our house and the windows of our house are open. जो पाप है उस वजह से हमारे घर की बारियां और दरवाजे खुल गए हैं। If you have a beautiful house अगर आपके पास सुंदर घर है and the door is open, और उसका दरवाजा जो द्वार है वो खुला है, windows are open, उसकी जो विंडोज है वो ओपन है। a lot of us, as people, we keep सोने की चीज है, gold somewhere in the house. एंड अगर आपने आपके घर में जो सोना है ऐसा कुछ आपने रखा हुआ है कीमती चीजें, Door is open. लेकिन द्वार जो है वो खुला है, What will happen? क्या होगा? क्या होगा? कौन आएगा? होगा चोर आएगा। to steal. This is the house of God. ये जो है हमारे शरीर को परमेश्वर का घर है। Because of sin, the door is open. और पाप की वजह से जो ये घर है हमारे शरीर उसका द्वार है वो खुला है। वो कौन चोर है जो आएगा? एंड वो कौन आएगा जो चोर है? शैतान। ठीक है? शैतान will come. That's why you have depression. That's why you have sickness. That's why you have curses. That's why you have nothing happening. Because the door inside Malik is not the right Malik. The wrong person inside, right? The door is जो द्वार है वो खुला उस वजह से बीमारी है, मुश्किलें हैं, डिप्रेशन है वो आएगा क्योंकि ये जो शरीर है उसका जो मालिक है वो नहीं, जो एक्चुअल जो मालिक होना चाहिए वो नहीं है। Here what we read, in Jesus we have छुटकारा, we have redemption, we have deliverance. Hallelujah. यीशु में हमें छुटकारा है, हमें तो उसमें ही रिडेम्पशन है। Through His blood, उसके रक्त के द्वारा forgiveness of all our sins. हमारे हर पापों की माफी उसमें है। The right the devil has gone जो शैतान है उसका जो अधिकार है वो चला गया है because all our sins are forgiven. क्योंकि हमारे हर पाप माफ कर दिए गए हैं। Satan can say, oh, so this, you did this, you did this, you did this, and Jesus, you say, oh, yes, you're right, Satan. But here I have a solution, blood of Jesus. शैतान कहेगा कि आपने ये किया, लेकिन हमें बताना है कि परमेश्वर क्या वचन क्या कहता है कि उसके रक्त के द्वारा हमें छुटकारा मिल चुका है। वो कहेगा, आपने ये किया, ठीक है, लेकिन मेरे पास Go away. मेरा सारा पाप माफ हो गया। All my sins are forgiven and redeemed. Hallelujah. All you have to do is believe. All you have to do is believe. आपको जो करना है वो बस विश्वास करना है। If you believe Jesus said, जो परमेश्वर ने कहा उस पर अगर आप विश्वास करते हो, you will see my glory. तो आप उसकी महिमा को आपके जीवन में देखोगे। The invisible will become visible. जो चीज है दृश्यमान नहीं है वो दृश्यमान होगी। I was preaching in a place, मैं एक जगह प्रचार कर रहा था, different country, एक दूसरी जगह पे दूसरे राज्य में। and as we are sharing the love of God and grace of God, जब हम परमेश्वर का प्रेम और उसकी जो कृपा है हम बांट रहे थे, the invisible power of the Holy Spirit started falling on people. जो अदृश्य सामर्थ्य है जो पवित्र आत्मा की वो हर एक पे आना शुरू हो गया। People who never heard about Jesus, never heard about the blood of Jesus. और वो लोग ऐसे थे जिन्होंने कभी भी परमेश्वर यीशु के बारे में और यीशु के बारे में सुना नहीं था। God was touching them. और जो परमेश्वर है उन सबों को छू रहा था। We would be praying and people would be coming near and they'll just fall down in the power of God, just fall down. और जब प्रार्थना कर रहे थे जो लोग आगे खड़े हुए थे वो पवित्र आत्मा की वजह से वो लोग गिर रहे थे वहाँ They पे। would start screaming. और वो लोग वो चिल्ला रहे थे। And inside them, they would say in that language, I'm not coming out, I'm not coming out, I'm not coming out. और जो शैतान उनके अंदर था वो कह रहा था कि मैं बाहर नहीं निकलूंगा, मैं बाहर नहीं निकलूंगा। But in the name of Jesus, he comes out. लेकिन यीशु के नाम में वो हर शैतान वहाँ से निकल गया। Through the blood of Jesus, यीशु के रक्त के द्वारा, there is deliverance. यीशु के रक्त के द्वारा छुटकारा है। They got up, वो खड़े हुए they realized they've been set free. और उन्होंने ये अनुभव किया तो उनको छुटकारा मिल चुका है। So some of them are mothers, और जो कुछ जो माँ वहाँ पे थी, they
और उनको जो बच्चे हैं उनको वापस लेके आए। They know Jesus has set them free. They know Jesus. उन्होंने ये जाना कि यीशु ने उनको Something has happened. I'm free. कुछ उनके अंदर हुआ है जो उनको छुटकारा मिला है। So they bring the child. और अपने बच्चों को लेके आए। Pray for my child. Pray for my child. और वो अपने बच्चों को लेके आए। मैंने लेके हमारे पापा हमारे बच्चे की प्रार्थना करिए। Jesus is real. You have faith. He will touch you today. अगर आप विश्वास रखते हो तो यीशु आज आपको छुएगा। All your sins will be forgiven. All your sins will be forgiven. आपके जो भी पाप है वो हर पाप को माफ कर दिए जाएंगे। And you will see this washing, this cleaning, and this new blood, और आप महसूस करोगे कि आपका जो रक्त है वो धोया जा रहा है और एक नया हो रहा है। which can draw the life and presence of the Holy Spirit to fill you everywhere. और वो जो है वो पवित्र आत्मा में जो जीवन है और जो एक नई बात है वो आपके जीवन में उस सबको भर देगा। In 1 John 1:19, in 1 John 1:9, we read, पहला यूहन्ना की पत्री 1:9 says, if you confess your sins, अगर आपके पापों को आप कबूल करते हो He is righteous and just to forgive us all our sins. I'll just read it. यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब धर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। अगर हम हमारे पापों को मान लें, इसका मतलब ये है कि प्रभु के सामने हम सत्य से आकर जो रिश्ता जोड़ रहे हैं, सत्य का रिश्ता जोड़ दिया, हम क्या कहते हैं, प्रभु हाँ मैंने ये गलत काम किया है, प्रभु हो रहा मेरा प्रभु, हाँ मैंने ये गलत काम किया है। If I confess my sins, if you confess our sins, that means we truly come before God and we say that and we accept that before God that I did this. His promise, उसकी जो वाचा है, says He will forgive us our sins and cleanse us. वो हमारे पापों को माफ करेगा और उसे धोएगा भी। The moment you say, Lord, I confess, जिस समय आप कहते हो कि परमेश्वर मैं स्वीकार करता हूँ, मैं कबूल करता हूँ, मैंने ये गलत काम किया है, that I confess that I did this wrong sins, that second you are washed. और उसी समय आपके जो पाप है वो धुल जाएंगे। The blood of Jesus washes us. परमेश्वर का जो रक्त है आपके पापों को कभी धो देगा। So we saw तब देखा the everlasting blood. जो अनंतकालीन जो रक्त है, Hebrews 13:22. Everlasting. He has made a covenant. His blood is with you forever. अनंतकालीन रक्त जो उसने अपनी वाचा के द्वारा हमें दिया है, जो हमारे साथ है हमेशा। We are His own. We are His precious possession. He has paid for us with His own blood. That's how precious we are to Him. हम उसके प्रिय है, उनके प्रिय है, ये उसने अपना जीवन देके उस कीमत चुकाई, उनको उससे प्रिय है। If you want to know how important you are, how precious you are, कितना कीमती है आप, if you want to know how important you are, if you want to know, अगर आप जानना चाहो तो आप कितने कीमती हो, just remember you are worth the blood of Jesus, the blood of the living God. That's how much you are worth. आप ये जान लो कि आप इतनी कीमत है कि उसने अपने रक्त से आपको खरीद लिया है, इतनी कीमत आपकी है, उसके रक्त के समान आपकी कीमत है। Nothing you have done or will do will change how much you are worth. Nothing you have done अगर आपने कुछ नहीं किया, आपने कुछ भी नहीं किया है, or will do और अगर कुछ करते हो, will change वो कुछ भी how much He loves you and how much you are worth. वो ये चीज को नहीं बदल देगा कि आप किसी वो परमेश्वर कितना आपसे प्रेम करता है। Here it says, वो ये कहता है वचन में, cleanses us. वो हमें धोता है। And we read earlier in Ephesians, we are forgiven. परमेश्वर पत्र में देखा कि वो उसने हमें माफ कर दिया है, हमें माफी मिल चुकी है। And we read also, we are delivered, we are redeemed from the power of darkness. और हमने ये भी देखा कि अंधकार से उसने हमें छुड़ाया है। Furthermore, we read Hebrews chapter 10, इब्रानी की पत्री 10वां अध्याय देखेंगे, verse 19. 10 और 19 देखेंगे। Not only the blood of Jesus cleanses us, washes, forgives us,
deliver us. Not only does the blood of Jesus cleanse us, जो परमेश्वर रखते हैं वो हमें सिर्फ धोता ही नहीं है, deliver us, हमें छुटकारा ही नहीं देता, forgive us, हमें माफी नहीं देता, make us righteous. हमें पवित्र नहीं बनाता, It also brings us into the presence of God. वो हमें इस हर चीज से अलावा वो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में ले आता है। In verse 19 we read, therefore, brethren, having boldness to enter the holiest by the blood of Jesus, verse 20, by a new and living way which he consecrated for us through the veil of his flesh, 21, and having a high priest of the house of God, 22, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from evil conscience and our bodies washed in pure water. इब्रानियों 19 से 22 हम पढ़ेंगे। 19 इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का किया हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाए। So in verse 19 we read, having boldness to enter the holiest by the blood of Jesus. Okay? पुलिस वचन ये कहता है कि जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का किया हो गया है। The holiest place in the Bible, in the Old Testament, was the temple, right? पुराने शास्त्र में जो सर्वपवित्र स्थान था वो परमेश्वर का मंदिर था। In the temple, there were three parts. और जो मंदिर है उसके अंदर 3 अलग-अलग प्रकार के गुरु थे। Outside there was a place to wash, place for sacrifice. जो बाहर का जो प्रथम जो गुरु था वहाँ पे जो बलि देना या फिर वहाँ पे शुद्ध करना वो क्रिया होती थी। Inside, first part was lamp on the left and bread on the right. Lamp on the left, Leah, and bread on the right. Left lamp, right bread. तो जो दूसरा जो भाग है उसका अगर प्रवेश होते तो जो हमारे दाईं तरफ दिया है और हमारे बाईं तरफ जो रोटी है ब्रेड है वो है। And in front was the incense. और जो बीच में था वो धूप जो बीच में वो धूप है। And then there was a veil. There was a veil, right? और उसके बाद जो आगे वाले कक्ष के पहले वहाँ पे एक पर्दा आता है। And in that, after that was the holy of holies, most holy place where the presence of God was. और पर्दे के बाद वाला जो जगह है वो सर्वपवित्र स्थान है, महान पवित्र स्थान है। जहाँ प्रभु का हजूरी था. Where the Lord's presence dwells. And there, once a year, the high priest would enter. Only once a year with the blood of animals. Right? Once a year would enter for the atonement, प्रायश्चित of our sins. Okay? So पापों की माफी के लिए जो महायाजक है वो साल में एक बार महान पवित्र स्थान है वहाँ पे वो जाते हैं। Here, यहाँ पे we are reading through the blood of Jesus. यहाँ पे हमने पढ़ा कि परमेश्वर के रक्त के द्वारा Him but say, boldly, we can enter. We enter as if we are the high priest into that presence of God. हम हियों के साथ जैसे कि हाई प्रीस्ट है जो महायाजक उसके जैसे हम हियों के साथ उसके उपस्थिति में हम आ सकते हैं। So in heaven, जो स्वर्ग में we are entering straight into the presence of God through the blood of Jesus. स्वर्ग में जो परमेश्वर है उसके सम्मुख हम उसके रक्त के द्वारा उसके सम्मुख हम आते हैं। We have a covenant, eternal, in the blood. हमें रक्त की जो अनंत वाचा है। We have forgiveness. दूसरा जो हमारे पास माफी है। We have deliverance. हमें छुटकारा है। We have cleansing. चौथा जो है हमें शुद्ध किया गया है। We have righteousness. जो 5 बातें हमें पवित्र बनाया गया है। And we have entrance into God's presence. और जो अंत में बात है कि हम परमेश्वर के महान पवित्र स्थान में हम आ सकते हैं। In the Old Testament, during the time of Moses, when they dedicated the temple and the tabernacle, they would sprinkle blood everywhere. On the people, on the tent, on the book, everywhere they sprinkled blood. जो पुराने नियम में मूसा के समय में जो टैबरनेकल जो था वहाँ पे और जो लोग उसके अंदर थे वहाँ पे
draw near with a true heart, in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from a pure conscience and our bodies washed with pure water. और यहाँ पे इब्रानियों 10 और 22 में देख सकते हैं, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव के लिए कर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाए। So God is saying, परमेश्वर कह रहा है, come near, आप मेरे नजदीक आइए, draw near, मेरे और नजदीक आइए, full of faith, believe, विश्वास करिए, because you have been sprinkled with the blood of Jesus. क्योंकि आपको उसके रक्त के छिड़काव के द्वारा सबको पवित्र किया गया है। No bad conscience, no guilty feeling. जो पूरा विवेक है वो आपको रखने की जरूरत नहीं है। Today, आज from this moment, ये समय से ही we have been cleansed and sprinkled with the blood of Jesus. हमें धोया गया है और उसके रक्त के छिड़काव से हमें पवित्र किया गया है। No guilty. हमें वो जो गिल्ट है वो रखने की जरूरत नहीं है, कोई दोष रखने की जरूरत नहीं है। When we believe in Jesus, जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, we believe in that blood that is pure without sin. और हम उसके द्वारा हम उस रक्त पर विश्वास करते हैं जो पवित्र है और उस जिसमें कोई पाप नहीं है। We become one. हम उसके द्वारा एक होते हैं उसके साथ। Like this is Jesus, this is me. Okay? This is Jesus, Eric is Jesus, and this is me. अभी समझिए कि जीसस मैं जीसस हूँ और वो पास्टर सतीश है We have become one. और हम एक होते हैं। Now Jesus अब यीशु died on the cross. जो क्रूस पे मृत्यु पाए He took all my sin. और उन्होंने जो मेरे पाप थे मेरे पे उन्होंने पे ले लिए क्रूस पे। This is my sin. ये जो मेरे पाप है Jesus took it all. और यीशु ने वो हर एक पाप अपने आप पे ले लिए And he died. और वो मृत्यु पाए। But I'm joined with him. लेकिन मैं उनके साथ अभी एक हूँ। All my old guilty, bad, everything he took. He said, everything I've done. जो भी बुरा मैंने किया था, जो भी गिल्ट था, जो भी बुरी बातें थी, वो सब परमेश्वर के ऊपर है, यीशु के ऊपर है। He is being punished. अब उनको दोष दिया जा रहा है। He is being nailed. अब उनको किले मारे जा रहे हैं। His blood is coming out. उनका ब्लड जो यीशु का रक्त है वो बहाया जा रहा है। 7 places his blood came out. 7 जगह से उसका रक्त बहा। As he died, जैसे वो मर रहे हैं, I'm joined right now. मैं उनके साथ एक हूँ विश्वास से। He is dying. Who else is dying? अगर यीशु मर रहे हैं तो उनके साथ कौन मर रहा है? I'm dying. मैं खुद भी यीशु के साथ मर रहा हूँ। And then उसके बाद they took Jesus down from the cross. उन्होंने यीशु को क्रूस पे से नीचे उतारा। And then what happened? They buried him. और उसके बाद क्या किया? उन्होंने उनको दफना दिया। Back to where Adam was. और कुछ जो सुगंधित वस्तुएं थी उनको लगाया। Back to where Adam came from. और वापस जहाँ से आदम आया था वहाँ पे वो वापस चले गए। Back to the earth. जो पृथ्वी है उसके अंदर समा गए। Who is there now? Jesus and all Satish. और उनके साथ कौन है? यीशु और उनके साथ जो पूरा वाला शक्ति उनका जीवन था वो उनके साथ अब वहाँ पे है। Now we're waiting. अब आप राह देख रहे हो। One night. आपने एक रात्रि राह देखी, दूसरी Thursday. रात और तीसरी रात। Up from the dead. और पर वहाँ से A new Adam. वहाँ से एक नया आदम, Just like the old Adam was from the earth, जैसे पुराना आदम जो ये पृथ्वी से था, is a new Jesus. अब ये नया यीशु, He's rose up. अब वो उठे। Who? So we're in the grave, right? We're in the grave now. हम अभी कब्र में हैं। I am there. You're there. मैं वहाँ पे हूँ, सतीश पास्टर वहाँ पे, यीशु और सतीश पास्टर वहाँ पे। And the third day, और Jesus इसके rise. यीशु जी उठते हैं। Who's rising with him? उनके साथ कौन दूसरा जो उठता है? Now this one is new, अब ये जो शरीर है वो नया है, not old. ये पुराना शरीर नहीं है। Just as when God made Adam, right? जैसे जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, श्वास फूका और उसे बनाया, Same way Jesus breathes into me. वैसे ही परमेश्वर अपना श्वास मेरे में फूकते हैं। He made a new Adam. उन्होंने
him. उनके जैसे ही Breathe into me. He breathed into me. वो उन्होंने श्वास जो अपना श्वास को मेरे में फूंका Says, they should receive my Holy Spirit. और मैं कहा कि शक्ति जो मेरा पवित्र आत्मा है वो आप पाइए। I've died मैं मृत्यु पाया on the cross. और मैंने मृत्यु पाया क्रूस पे। No longer I'm living. अब मैं नहीं जो जीवित हूँ, A new salvation living. अब जो है जो जीवित है वो नया शक्ति से वो जीवित है। I'm risen anew. मैं एक नया शक्ति हूँ जो उठा। If you believe in Jesus, अगर विश्वास करते हो यीशु में, there's a new you. आप एक नए बन जाते हो। You can't see, आप वो देख नहीं सकते, but it's there. लेकिन वो वहाँ पे है। Let me tell you one more thing. मुझे एक और चीज आपको कहनी है। You're going to jump a minute, right? Okay? After Jesus rose, what happened? जैसे परमेश्वर का उठे, उसके बाद क्या हुआ? Anyone tell me? क्या कह सकते हैं क्या हुआ जब परमेश्वर का वापस रिजर्वेशन हुआ? वो उठने के बाद प्रभु क्या हुआ? क्या हुआ जब परमेश्वर उठे? Ready? अब तैयार हो? Heaven. वो स्वर्ग में गए, Right? He rose. वो स्वर्ग में उठाए ले गए, Through the sky. वो स्वर्ग में उठाए ले गए। Where is he now? अब वो कहाँ पे है? Where is Jesus? अब वो कहाँ पे है? In heaven, at the right hand, seated at the right hand of God. वो In the throne. पिता के दाहिने हाथ पे उनके सिंहासन पे बैठे This हुए is the हैं। throne. This is the throne. ये हमारे लिए ये सिंहासन है उनका। This is God the Father. ये परमेश्वर पिता है This is Jesus seated at the right hand. और दाईं तरफ वो यीशु बैठे हुए हैं At Psalm 110, right? जो सात 110 का कहा इसे At the रहा right है। hand. But there are three here now. बट अब वो तीन लोग हैं वहाँ पे। There's God the Father. परमेश्वर पिता, There is Jesus at the right hand. उनके दाएं हाथ पे जो परमेश्वर यीशु है वो, Who else is there? और उनके साथ कौन है? With Jesus. यीशु के साथ कौन है? Because I'm joined. क्योंकि मैं अब यीशु के साथ एक हूँ। That's why the Bible says इसको जैसे पवित्र शास्त्र कहता है in Colossians 3, कुलुस्सियों की पत्री 3 में chapter 3 verse 1. If then you are raised in Christ, seek those things which are above, where Christ is sitting at the right hand of God. See? So You what are you raised need in Christ. आप तो परमेश्वर के साथ जिंदा रहे हो Seek those things where Christ is sitting. और आप वहाँ पे बैठे हो जहाँ पे क्रिस्त बैठा हुआ है। And verse 3 says, because you have died and your life is hidden in Christ. Because you have died, क्योंकि आप मृत्यु पाए हो। verse 3, you have died and you have died, you see? You died. And you have a new life. क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। So our life is हमारे a जीवन life of power in the blood of Jesus. That's our life. हमारा जीवन है वो जीवन सामर्थ्य का है यीशु क्रिस्त के रक्त में। The blood of Jesus यीशु का रक्त washes us, हमें धोता है, forgives us, हमें माफ करता है, cleanses us, हमें साफ करता है brings us into the presence of God. और वो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आगे ले आता है। I can come, hug से, हिम्मत से, आप भी उनके साथ हक से आप आ सकते हो उसकी उपस्थिति में पूरा विश्वास से. पूरे विश्वास के साथ with all faith। Because I'm in the presence of God, क्योंकि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में हूँ all of heaven's resources are with mine. और स्वर्ग की हर एक बातें हर एक चीजें अब वो मेरी भी है। So the life we now live, life we live now, तो जो जीवन हम जी रहे हैं the Spirit of God is inside me all the time. परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमेशा मेरे अंदर है। This house ये जो शरीर जो घर के समान है is a temple of the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा का शरीर है, उसका घर है। This house belongs to Jesus. और ये शरीर जो घर है वो यीशु को ही यीशु के लिए ही है। Who made this house? ये घर को किसने बनाया? यीशु ने ही बनाया। But now I give him permission to come and live inside. लेकिन अब मैं परमेश्वर को मैं कहता हूँ कि परमेश्वर को आए और यहाँ इस घर में रहे। In heaven, इस स्वर्ग में I am hidden in Christ. मैं स्वर्ग में परमेश्वर में यीशु में छिपा हुआ हूँ On earth, और ये पृथ्वी में
Holy Spirit, Father, Son, Holy Spirit is hidden in me. पिता पुत्र पवित्र आत्मा वो मेरे अंदर छिपे हुए हैं। Yeah? John chapter 14, यूहन्ना पत्री 14 अध्याय में लिखा हुआ है, verse 23, I believe it says, I will come, and my Father will come, and will live inside you. 14 में लिखा हुआ है कि मैं आऊंगा, मेरा पिता आएगा और हम तेरे साथ एक घर रहेंगे। He will make our home inside you. हम हमारा घर के अंदर रहेंगे। Do you believe? क्या आप विश्वास करते हो? How do you believe? That the eternal God is living in you. क्या विश्वास करते हो कि अनंत परमेश्वर वो मेरे अंदर हमारे अंदर रहता है? 2 Corinthians chapter 6 verse 16 says, don't you know you are the temple of the Spirit? दूसरे करंथियों 6 और 14 में लिखा हुआ है कि आप नहीं जानते हो कि 6 और 16 में लिखा हुआ है कि आप नहीं जानते कि आप उसका मंदिर हो। Yeah. It says, for you are the temple of the living God, and I will dwell in you. Right? You are the temple of the living God. अब परमेश्वर के मंदिर है और परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। Now, let me just say one thing. मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ, This temple ये जो मंदिर belongs only to the Holy Spirit. वो सिर्फ ये मंदिर है, वो सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा का ही है। You can't have two people on the throne. आप उस सिंहासन पे दो अलग-अलग लोगों को नहीं बिठा सकते हैं। एक कुर्सी से That's only one chair, एक रोमानिच. and the chair belongs to Jesus only. You can't say, well, I'll have this one, and this one, and this one. आप ये नहीं कह सकते मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। There is only one person who lives here and one person who worships. और वहाँ पे एक ही इंसान है जो रहता है और एक ही इंसान है जिसकी हम आराधना करते हैं। If you want अगर आप चाहते हो, to walk with Jesus, अगर आप चाहते हो कि आप यीशु के साथ संग चले, you only need to hold his hand, आपको बस यही करना है कि आपको उसका हाथ पकड़े रखना है and he will hold your hand. और वो आपका हाथ पकड़ के रखेगा। You don't need anyone else. आपको और कोई भी इंसान की जरूरत नहीं है। No one else will work, और अगर आपको इंसान भी है तो वो भी काम में नहीं आएगा, because everyone's blood is क्योंकि हर एक इंसान का जो रक्त है वो messed up. वो गंदा है, गंदा हो No चुका matter है। how you think holy they are, if all the blood is messed up. उनका वो हर एक व्यक्ति का जो रक्त है वो बहुत ही गंदा और बुरा है। Only Jesus सिर्फ यीशु, says, I am from above. और सिर्फ यीशु तो कहता है कि मैं ये स्वर्ग, मैं ये पृथ्वी से ऊपर से आया हूँ, Everyone is from below. और जो भी बाकी लोग हैं वो ये नीचे से आए हुए हैं। There is only one foundation of the temple, one foundation stone. जो मंदिर है उसकी जो नींव है उसका एक ही पत्थर है, Only one foundation. एक नींव है, No other name. कोई भी उसकी अलग नींव नहीं है। What is the foundation? और वो नींव, Jesus. वो जो नींव है वो यीशु खुद ही है। There's only one person who sits on the throne of my heart. और एक इंसान है जो हमारे हृदय के सिंहासन पर बैठता है, वो यीशु है। Now you worship this thing, you worship that thing, and you worship this thing, and you put Jesus at the same time. It doesn't work. अगर आप कोई चीज की एक चीज की वर्शिप आप आराधना करते हो, दूसरी चीज की आराधना करते हो और उस सब आराधना में परमेश्वर को बिठाते हो तो वो काम नहीं करेगा। How bad when a woman has two husbands? Doesn't work. How bad when a woman has two husbands? ये अच्छी बात नहीं कि जब कोई स्त्री का दो पति होते हैं। There's only one husband हर एक स्त्री का एक ही पति होता है। for a believer. जो विश्वास में वो स्त्री के लिए एक ही पति होता है It's Jesus. और हमारे लिए वो है यीशु। If you put your trust in Him, अगर आप अपना विश्वास के अंदर रखते हो Him alone, and only Him, और उसके अंदर ही सिर्फ विश्वास रखते हो, He will dwell inside. वो आपके अंदर रहेगा He will make you new. और वो आपको नया करेगा। That's why it says, don't be adulterous. उसमें उसको कहता है कि आप व्यभिचारी नहीं बनो। God paid the price for you. God made you. You belong to Him. क्योंकि परमेश्वर खुद ने उसकी कीमत दी हुई है और हम उसको भी बिलोंग करते हैं, हम उसके ही हैं। So if you invite Him, अगर आप उसे आमंत्रण देते हो, everything else goes to go. उस आमंत्रण के द्वारा जो बाकी चीजें वो चीजें दूर होनी चाहिए। Only one throne, एक ही सिंहासन and only one person sitting on that throne. और एक ही व्यक्ति जो सिंहासन पे बैठता है। The one who made the throne. एक ही इंसान जिसने वो सिंहासन को बनाया है वही वो सिंहासन पे बैठता है। Are you happy with this? क्या आप खुश हो ये चीज से? Doesn't this belong to Jesus? Doesn't this belong to God? क्या ये शरीर, ये मंदिर,
का है। So why put someone else, some other person in the middle? तो क्यों हम कोई एक बाह्य व्यक्ति को हर एक चीज के बीच में, परमेश्वर के बीच में हम उस बाह्य व्यक्ति को रखते हैं? Jesus said, यीशु ने कहा, John chapter 14 verse 6, यूहन्ना की पत्री I am the way, कहा कि मैं मार्ग हूँ, the truth, I am the life. मैं सत्य हूँ, मैं जीवन हूँ। No one comes to the Father कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता मेरे बगैर। Jesus, I am the only one who can bring you to the Father. और यीशु ने कहा, मैं ही वो हूँ जो आपको पिता के सन्मुख ला सकता है। Don't need anyone else. आपको कोई और इंसान की जरूरत नहीं है। Don't need duplicate. आपको कोई डुप्लीकेट की जरूरत नहीं है। In your pocket, आपकी जेब में, you have 10 pound note, right? आपकी जेब में शायद से आपके पास 10 पाउंड का नोट होगा। Sometimes when you go to a shop, they check, they put the note under the light. Is this real or is it fake? कभी-कभी हम कोई दुकान में जाते हैं तो वो इंसान वो जो नोट है वो ऐसी मशीन के नीचे रख के देखते हैं कि वो ओरिजिनल है कि नहीं है। Would you ever risk putting a good note and a jolly note in the same check and go to the shop and say, it's the same? क्या कभी आप ऐसा जोखिम उठाना चाहोगे कि जहाँ पे आपने जो ओरिजिनल नोट है और जो डुप्लीकेट नोट है वो दोनों साथ में रखोगे और जाओगे उनका कुछ खरीदने के लिए? When you go to the doctor, जब आप चिकित्सक के पास जाते हो, suppose you have, say you have blood pressure. मान लो कि आपको ब्लड प्रेशर है, Doctor says, this is a tablet for blood pressure. और वो चिकित्सक को कहेगा कि ये दवाई है वो ब्लड प्रेशर के लिए है। He says, it's okay, doctor, I'll take this tablet and I'll put different tablets. I know someone gave me, I'll take them as well. क्या आप ये कहोगे कि डॉक्टर ठीक है ये तो है ये दवाई मैं लूंगा या आपने ये लेकिन किसी और इंसान ने मुझे दवाई दी है वो भी लूंगा? What will happen? क्या होगा? I'll take this metformin, I'll take this Datacin, I'll take this one, I'll take Nomeprazole, I'll take this and this, right? Doesn't matter what the doctor said, I'll take anything will do. So it's all the same. और वो ब्लड प्रेशर के लिए मैंने ये भी दवाई ली, ये भी दवाई ली, ये भी दवाई ली, क्योंकि वो हर एक दवाई एक ही है, भले डॉक्टर ने जो भी कहा लेकिन मैं तो ये दवाई लूंगा। You are smart. आप सोच लो कि आप बहुत स्मार्ट हो। You know, if the doctor says this tablet, that tablet, nothing else. That dose, nothing else, no more. डॉक्टर ने जो कहा, चिकित्सक ने कहा कि ये दवाई और एक डोज नहीं लेना है, वही आपको लेना है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। Be smart. आप होशियार बनिए। The tablets is Jesus. और वो जो दवाई है वो यीशु बताता है। Don't need anything else. आपको कुछ और नहीं चाहिए। His blood उसका रक्त will set you free. उसका रक्त आपको छुटकारा देगा। I was in a place where we were praying for people. मैं एक जगह पर था जहाँ पे लोगों के लिए प्रार्थना करी जा रही थी। There was a woman, her whole hand, her whole face was covered in sores. Big sores. Her whole hand, face, everything, feet covered in sores. और जो वहाँ पे एक स्त्री थी जिसको पूरे हाथ पे, पूरे शरीर पे, पूरे बदन पे कुछ ऐसी फोड़ी अच्छा स्वेलिंग था। Even her eyes were affected, she couldn't see. और उनकी आंखों से उनकी आंखों से नहीं देख पा रहे थे। And I said, okay, let's pray. और मैंने कहा कि आइए हम प्रार्थना करते हैं। I was frightened even to hold her hand because her whole hand was covered. Everything was covered. और मैं इतना डरा हुआ था कि उस स्त्री का पूरा हाथ सब कुछ वो सूजा हुआ था, ऐसा कुछ था उनके हाथ She was में। crying, और वो स्त्री रोई जा रही थी। She tried everything. उस स्त्री ने सब कुछ प्रयत्न कर लिया। So I held her hand. मैंने उनका हाथ पकड़ा। I said, in the name of Jesus, मैंने कहा यीशु के नाम में। skin become like baby skin. और उनकी जो स्किन है वो एक छोटे बच्चे की समान हो जाए, बच्चे छोटे बच्चे की समान हो जाए। And I went somewhere else to pray. और मैं किसी और की प्रार्थना करने के लिए गया। She gave testimony later. और उस स्त्री ने उसके बाद गवाही दी कि From that minute, वही समय she started getting healed. वही समय उन्होंने चंगाई प्राप्त करना शुरू कर दिया। All the skin became clear, baby skin. All the skin, everything. Only a bit in the hand left, and they were completely healed. उनका पूरा शरीर पे जो त्वचा पे जो भी चीजें थी वो पूरी चली गई थी, वो पूरी चली हो चुकी Even है। if she was not able to see, God, Jesus healed her. और परमेश्वर ने जो नहीं देख पा रहे अपनी आंखों से उसको भी चंगा किया। The blood of Jesus यीशु का रक्त is healing. वो चंगाई देने वाला रक्त है। It's breaking all the power of darkness. It's breaking all the power of darkness. वो रक्त वो हर एक बंधन को तोड़ने के लिए सामर्थ्य है। Shall we stand up? Shall we pray? क्या हम अपने सामने खड़े हो सकते हैं? हम प्रार्थना करेंगे।
नाम पर धन्यवाद करते हैं। If you have faith, अगर आप विश्वास करते हो, if you believe, अगर आप विश्वास करते हो, just a little bit, थोड़ा सा ही today आज you will set free. आप छुटकारा पाओगे। Blood of Jesus, परमेश्वर का रक्त Jesus paid everything for you. वो रक्त जिससे कीमत चुकाई हर बात के लिए अपराध में जाएंगे। Maybe you can pray after. क्या आप मेरे विषय का दोहरा सकते हो? If you're feeling guilty, अगर आप अपनी फील कर रहे हो, if you feel you're not worth anything, अगर आप ये मानते हो कि आपकी कोई हिम्मत नहीं है, कुछ वजूद नहीं है, if you feel you're under oppression, अगर आप मानते हो कि आप कोई दबाव में हो if you need healing, और आपको चुकाई चाहिए, Jesus is here. परमेश्वर यीशु यहाँ पे है। He paid the price in full for you. 100% paid the price in full. यीशु ने जो कीमत चुकाई है वो पूरी की पूरी 100% चुकाई है। All you need to do is receive by faith. आपको जो करना है बस विश्वास के द्वारा वो ग्रहण करना है। Just believe जस्ट विश्वास करिए, right now. बस विश्वास करिए। अभी You are forgiven. आपको माफी दे चुकी है, You're healed. आप चंगाई पा चुके हो God is filling you with His presence. और परमेश्वर उसकी उपस्थिति से आपको भर God रहा है। is filling you with His Holy Spirit. परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा आपको भर रहा है। We're going to confess our sins. हम Okay? हमारे पापों को हम कबूल करेंगे। Just be honest before God. Just be honest. विश्वास रहो उसको सच्चाई से सच्चाई से। प्रभु के साथ आप बात करो। Talk to him with जो भी गुनाह आपने किया है, what are the sins that you जो have भी did? बुरे काम आपने किए हैं, What are the bad words that you have did? आज को प्रभु को सौंप दो। Today give all to Jesus. आज कबूल करो। Today confess. प्रभु मैं पापी हूँ। Confess that I am sinner. प्रभु मेरे को माफ करो। मेरे को Forgive me. आपके आत्मा से भर दो। Fill me with your spirit. चलो हम हाथ उठाकर प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, Lift your hand and pray, Jesus. मैं कबूल करता हूँ। मैं कबूल करती हूँ। मेरा सारा पाप आपके पास जाता है। मेरे को क्षमा करो। मेरे को माफ करो। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने आपका लहू मेरे लिए बहाया और मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि मेरे को क्षमा मिली। आज भी इसी वक्त मैं नया हो गया। धन्यवाद। Right now I'm seeing अभी देख रहा हूँ there's a big heavy presence lifting from people. जो भारी जो भरकम जो वचन है यहाँ के लोगों के ऊपर से उठ रहा है। Some people have been stressed, जो चिंता है, कितने लोग चिंता में हैं, work stress. तो उनका जो काम है, जहाँ काम के जो चिंता है वो Jesus says, give it to me. वो यीशु कह रहे हैं कि वो काम की चिंता मुझे दे दो।